اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 12، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پراپرٹیز آف کولائڈس اسٹڈی کر رہے ہیں. کل ہم نے ایک امپارٹنٹ پراپرٹی اسٹڈی کی جس سے ہم براؤنین مومنٹ کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو کولائڈس کی کچھ پراپرٹیز بتا دیں، مگر وہ ایکچولی ہمارے سلیبس میں نہیں ہیں. صرف 3 پراپرٹیز ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنی ہیں. ایک پراپرٹی براؤنین مومنٹ ہے جو آپ نے دیکھ لی، اور دوسری پراپرٹی آج ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم آپٹیکل پراپرٹی یا ٹنڈال ایفیکٹ کہتے ہیں. یہ پراپرٹی کیا ہے؟ آپٹیکل پراپرٹی یا ٹنڈال ایفیکٹ کیا ہے؟ تو اس کے لیے اگر ہم کیا کریں گے، if a beam of converging light is passed through a colloidal solve, if a beam of converging light is passed through a colloidal solve، تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ the path of light یہاں پر خاص خیال رکھیے، through a colloidal solve in a dark room. If a beam of converging light is passed through a colloidal solve in a dark room, the path of light becomes visible. When viewed at right angles to the direction of light, the path of light becomes visible. پوائنٹ یہ ہے، آپ دیکھ لیجیے پھر سے. if a beam of converging light is passed through a colloidal solve in a dark room, the path of light becomes visible. یہ ایکچولی جو لائٹ ہے it appears to be blue in color when viewed at right angles to the direction of the light. تو this phenomena is called Tyndall effect. اسی phenomena کو ہم ٹنڈال ایفیکٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایفیکٹ جو ہے it was observed first of all by the scientist Tyndall in the year 1869. تو سمپل سی بات آپ دیکھ لیجئے. پہلے میں نے کہا if a beam of converging light، آپ نے فزکس میں پڑھا ہے converging light and diverging light، converging lens and diverging lens. جو کنویکس لینز ہوتی ہے اس طرح سے، اگر اس لینز پہ ہم کوئی لائٹ ریفلیکٹ کرتے ہیں، سپوز یہاں دس از دا سورس آف لائٹ، یہاں سے لائٹ آ رہی ہے، اٹ از انسیڈنٹ آن دس لینز. تو یہ جو کنویکس لینز ہے یہ کیا کرتی ہے؟ it converges, it makes this light to meet at a point. تو یہ جو میٹ کرتی ہے ایٹ اے پوائنٹ، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو لائٹ ہے یہ کنورج ہو گئی، اس لیے یہ جو لینس ہے یہ کنورجنگ لینس ہے. اب اگر یہی کنورجنگ لائٹ ہم پاس کریں گے، if this converging light is made to fall on a colloidal solve، تو کس طرح سے دیکھیے apparatus یا کا جو ارینجمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں. this is the source of light، ہم اس سورس سے جو لائٹ emit ہوتی ہے we make this light fall on the lens، convex lens. تو یہ convex lens کیا کرتی ہے؟ this convex lens it converges the light
और कन्वर्ज होने के बाद ये फिर से डाइवर्ज होती है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइट को हम, ये जो यहाँ से फिर से डाइवर्ज हो गई मीट होने के बाद, फिर से हम इसको एक और लेंस पे डाल देते हैं, कन्वेक्स लेंस पे। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है ये इससे एक बार फिर कन्वर्ज करेगी, मगर कन्वर्ज होने से पहले हम इसको पास करते हैं थ्रू ए सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्व। ये कोलाइडल सॉल्व है, दिस इज अ कोलाइडल सॉल्व। we make this converging light to pass through this colloidal solve, इस तरह से। तो जब ये कोलाइडल सॉल्व में पास होते तो बाहर से इस तरह ये लाइट बाहर आ जाती है। तो ये फिनोमेना, ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लाइट इस कोलाइडल सॉल्यूशन में पास होती है, यहाँ पर इसकी पाथ जो है ये विजिबल हो जाती है जब हम इस लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं थ्रू ए माइक्रोस्कोप। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्व करेंगे तो ये लाइट जो है इसकी पाथ जो है हमें विजिबल हो जाती है। तो मैंने कहा था कि जब हम लाइट किसी कन्वेक्स लेंस में से पास करते हैं तो ये जो लाइट है ये एक पॉइंट पे मीट करती है, तो हम इसको कहते हैं कन्वर्ज हो गई लाइट। तो इसी तरह से अगर हम कन्वेक्स लेंस में से पास करेंगे लाइट, तो उसके बारे में आप जानते हैं ये लाइट जो है ये फर्दर एक दूसरे से दूर हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये डाइवर्ज हो रही है। तो खैर हमें यहाँ पर क्या करना है, कन्वर्जिंग लाइट इज पास्ड। ये देख लीजिए, ये जो लाइट है यहीं से हमने इसको कन्वर्ज किया, पहले एक लेंस में पास किया, फिर दूसरे लेंस में पास करके फिर से कन्वर्ज हो गई। इस कन्वर्जिंग लाइट को हमने पास किया थ्रू ए कोलाइडल सॉल्व। तो ये जो कोलाइडल सॉल्व है हम इसको डार्क रूम में रख रहे हैं। तो डार्क रूम में रखने के बाद जब हमने लाइट पास की तो इस लाइट को जब हम ऑब्जर्व करते हैं एट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, तो हमें क्या होता है, इस लाइट की जो पाथ है वो विजिबल हो जाती है, दिखाई देती है, ब्लू लाइट दिखाई देती है। तो ये जो पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाती है, इसी फिनोमेना को हम टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पर ये जो कॉर्नर बनता है या कोन जैसी शक्ल जो बनती है लाइट की, इसको हम टिंडाल कोन कहते हैं, इसको हम टिंडाल कोन कहते हैं। तो ये फिनोमेना जो हो रहा है इसी फिनोमेना को हम टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी कमरे में सोए हुए होते हैं, सुबह के वक्त जब लाइट किसी सुराख से अंदर कमरे में दाखिल हो जाते हैं तो लाइट का जो रास्ता होता है, द पाथ ऑफ लाइट जो होता है, दैट बिकम्स विजिबल। इस वजह से कि जो हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स इस लाइट की पाथ को रोकते हैं, बल्कि ये जो लाइट आती है डस्ट पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करके ये लाइट सैकेटर हो जाती है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल्स द पाथ ऑफ द लाइट एंटरिंग इनटू द रूम थ्रू एनी होल बिकम्स विजिबल। इसी तरह से ये फिनोमेना जो है हम इसको ऑब्जर्व करते हैं इन ए सिनेमा हॉल। क्योंकि आजकल तो हम सिनेमा हॉल्स का इस्तेमाल तो नहीं होता है, स्पेशली हियर इन कश्मीर। तो कश्मीर से बाहर सिनेमा हॉल अब भी चलते हैं। किसी ने को अगर आप में से वास्ता पड़ा होगा तो आपने देखा होगा कि सिनेमा हॉल में पीछे की तरफ से एक कमरा होता है, वहाँ से लाइट जो है इंसिडेंट की जाती है सामने पड़े एक स्क्रीन पे। तो जिस स्क्रीन पे हमें वो फिल्म वगैरह दिखाई दे रही है, तो जो डिस्टेंस जो या जो रास्ता स्क्रीन और पीछे वाले डार्क रूम के दरमियान होता है, अगर आप उसकी तरफ देखेंगे तो ये जो लाइट आ रही है पीछे से वो स्क्रीन पे पड़ जाती है, उस सारी लाइट का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो हमें दिखाई दे रहा है कि लाइट कहाँ से चल रही है। तो उस फिनोमेना को भी हम टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टिंडाल इफेक्ट वजूद में आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है कि जो इस कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज चूंकि बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, वो कोलाइडल पार्टिकल्स इस लाइट को सेकेटर कर, जो ही लाइट इन पे पड़ती है ये लाइट को सेकेटर करते हैं, तो वही लाइट हम ऑब्जर्व करते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से ये फिनोमेना ऑफ टिंडाल इफेक्ट हो रहा है। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा आसानी के साथ समझने के लिए अगर आप एक और एक्टिविटी भी करेंगे, अगर आप 2 कंटेनर्स लेंगे, 2 बीकर लेंगे, एक बीकर में
अगर आप प्योर सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन अगर आप लेंगे, आपको मालूम है ट्रू सोल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोप के जरिए भी दिखाई नहीं देता है। और इसी के साथ आप साइड में एक और बीकर रखिए, उस बीकर में आप कोलाइडल सोल्यूशन ले लीजिए, एक में ट्रू सोल्यूशन, दूसरे में कोलाइडल। कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है, कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो जानते हैं आप, वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ द ट्रू सोल्यूशन। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का साइज कोलाइड में बड़ा होता है, जबकि सोल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है। अगर हम डार्क रूम में क्या करेंगे, अगर हम एक टॉर्च के जरिए अगर हम लाइट इंसिडेंट करेंगे ऑन दीज टू बीकर्स, इस तरह से लाइट आएगी यहाँ पर इस बीकर में, आप देखेंगे सोल्यूशन में से जब ये लाइट पास होगी इसका रास्ता कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा, हमें पता ही नहीं चलेगा सोल्यूशन में कहाँ से लाइट पास होती है। और जो ही ये कोलाइडल सोल्यूशन में चलेगी तो कोलाइडल सोल्यूशन में आप देखेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन में इस लाइट की पाथ जो है ये विजिबल हो जाएगी इस तरह से, यानी कोलाइडल सोल्यूशन में जो लाइट है ये दिखाई देगी, उसके बरक्स जो ट्रू सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन में लाइट कहीं भी लाइट की पाथ दिखाई नहीं देगी। तो ये ट्रू सोल्यूशन है, इसमें से लाइट गुजर जाती है मगर पाथ ऑफ लाइट जो है वो कहीं भी विजिबल नहीं। उसके बरक्स जो कोलाइडल सोल्यूशन है, जब लाइट इसमें से गुजर जाती है तो लाइट की पाथ जो है ये विजिबल हो जाती है। तो ये लाइट पाथ ऑफ लाइट जो विजिबल हो जाती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स इन द कोलाइडल सॉल्व। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये जो ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन है दोनों मिक्सचर्स हैं, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। इनमें फ़र्क इतना है कि ट्रू सोल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है और कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज लार्जर होता है। तो इसका मतलब है कि छोटे पार्टिकल जो सॉल्यूट के होते हैं दे आर अनएबल टू स्टॉप द रेज पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। उसके बरक्स कोलाइडल सॉल्व में जब लाइट पास होती है तो यहाँ पर जो डिस्पर्शन फेज के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट वेव्स को उनकी पाथ को रोकते हैं, दे स्टॉप द पाथ ऑफ लाइट एंड देन रिफ्लेक्ट देम इन सम अनदर डायरेक्शन, यानी सेक्टर फिर इन्हें करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वही कोलाइड्स टिंडाल इफेक्ट दिखाएंगे जहां पर कोलाइडल पार्टिकल्स इतने बड़े होंगे या इतने बड़े होने चाहिए कि वो पाथ ऑफ लाइट को सेक्टर कर सकें, यानी जो वेव लेंथ, जिस वेव लेंथ की लाइट, खासकर विजिबल लाइट जो हम पास करते हैं थ्रू द कोलाइडल सॉल्व, द पार्टिकल्स of the dispersed phase in the colloidal solve must be so much larger in size that they should be able to stop and scatter the light which falls on them. If by any way the size of the particles would be small, then no Tyndall effect will take place. तो इस तरह से ये बात आप समझ गए होंगे कि टिंडाल इफेक्ट है क्या। सिंपल सा फिनोमेना है, जब लाइट हम पास करते हैं इन ए डार्क रूम थ्रू ए कोलाइडल सॉल्व, तो कोलाइडल सॉल्व जो होता है दैट सेक्टर्स द लाइट एंड मेक्स द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। तो इसी फिनोमेना को, टू मेक द पाथ ऑफ लाइट विजिबल आफ्टर पासिंग थ्रू द कोलाइडल सॉल्व, इसी फिनोमेना को हम टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। तो ये टिंडाल इफेक्ट जो है इसकी एक एप्लीकेशन या इम्पॉर्टेंस ये है कि इट हैज़ बीन यूज्ड बाय साइंटिस्ट, उसका नाम था जिगमंडे ने इसको इस्तेमाल किया है फॉर मेकिंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इन द ईयर 1903। ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है ये क्या होता है? एक्चुअली अल्ट्रा माइक्रोस्कोप आप ये समझ लीजिए, जो ऊपर हमने ये अरेंजमेंट बना लिया कि हमने कन्वर्जन लाइट पास की थ्रू कोलाइडल सॉल्व और फिर हमने माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया पाथ ऑफ लाइट को देखने के लिए इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। यही अरेंजमेंट जो है यही एक्चुअली अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो होता है ये हम कोलाइडल पार्टिकल्स इन ए कोलाइडल सॉल्व देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। The instrument which is used to observe the colloidal particles of the dispersed phase in the colloidal solve,
उसी apparatus को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो होता है एक्चुअली ये क्या देखता है, इट ऑब्जर्व्स, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व्स द लाइट scattered by the colloidal particles। यानी कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं, जो ये लाइट सेकेटर करते हैं, उसी लाइट को हम ऑब्जर्व करने के लिए जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है उसी को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लाइट पास करते हैं थ्रू कोलाइडल सॉल, तो फिर ये कोलाइडल सॉल में जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं तो यही लाइट हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। तो इसका मतलब है माइक्रोस्कोप जो होता है ये लाइट देखता है, ये लाइट को ऑब्जर्व करता है जो कोलाइडल पार्टिकल सेकेटर करते हैं। यानी कोलाइडल पार्टिकल एक्चुअली खुद दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि लाइट इमिटेड बाय द कोलाइडल पार्टिकल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम इस सॉल्यूशन में इन पार्टिकल्स को जहां जहां से लाइट इमिट होती है, सेक्टर होती है, तो वहां वहां पर कोलाइडल पार्टिकल मौजूद होता है। तो बाकी जो स्पेस जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं होते हैं, डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स नहीं होती, वो डार्क हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि एक डार्क बैकग्राउंड में हमें शाइनिंग पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से शाइनिंग स्टार्स आसमान में रात को दिखाई देते हैं, इसी तरह से इस कोलाइडल सॉल में हमें कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ये लाइक शाइनिंग पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। जितने शाइनिंग पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे उतने ही कोलाइडल पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल में मौजूद होते हैं। इस तरह से हम इस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। वी यूज इट टू काउंट द नंबर ऑफ dispersed phase particles in the dispersion medium या in the colloidal sol। आप समझ गए ना मेरी बात। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब हम कोलाइड में से लाइट पास करते हैं और फिर माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व करते हैं, हमें सिर्फ लाइट दिखाई देती है, जो लाइट इमिट होती है, तो वो लाइट जो है वो कोलाइडल पार्टिकल से इमिट होती है। तो जाहिर सी बात है, जितनी लाइट जहाँ जहाँ से लाइट इमिट होती है वहीं वहीं पर कोलाइडल पार्टिकल होता है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन काउंट कर सकते हैं, ये कितने पार्टिकल्स हैं। तो इसके अलावा इस चीज़ को, एक तो ये हो गया कि नंबर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स हम काउंट करते हैं इन ए कोलाइडल सॉल, इस चीज़ के लिए हम इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इस प्रॉपर्टी की मदद से हमें हेटेरोजीनियस नेचर जो है, हेटेरोजीनियस नेचर ऑफ द कोलाइडल सॉल पता चल जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं सारे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, कहीं पे कम होते हैं, कहीं पे ज़्यादा होते हैं। तो इसका जो हेटेरोजीनियस नेचर है वो हमें पता चल जाता है। इसके अलावा एक और बात यह है कि इस टेंडॉल इफेक्ट की मदद से हम वॉल्यूम ऑफ और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कोलाइडल सॉल कैलकुलेट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कोलाइडल पार्टिकल्स। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी को हम टेंडॉल इफेक्ट कहते हैं। एक्चुअली ये सिंपली क्या है, पाथ ऑफ लाइट का विजिबल होना जब हम किसी सॉल्यूशन में से पास करते हैं। नाम इसको टेंडॉल इफेक्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि ये प्रॉपर्टी सबसे पहले टेंडॉल ने ऑब्जर्व की है। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, टेंडॉल इफेक्ट। इसके बाद हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। वो तीसरी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में आपको देंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी दो चार बातें होंगी इसके बारे में आज, तो डिटेल में इंशाल्लाह हम इसको कल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स है, तो सबसे पहली बात ये है कि इस प्रॉपर्टी की मदद से हम स्टेबिलिटी ऑफ ए कोलाइड एक्सप्लेन करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ए कोलाइड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की मदद से हम स्टेबिलिटी ऑफ ए कोलाइड एक्सप्लेन कर रहे हैं।
इसमें आप देखेंगे कि जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं इन पे इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इसमें हम इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये कैसे इन कोलाइडल पार्टिकल्स पे आ जाती है। और इसके बाद इसका एक और आस्पेक्ट है, उसको हम इलेक्ट्रोफोर्सेस या कैटाफोर्सेस कहते हैं। ये दूसरा आस्पेक्ट इसका होगा। और इसका तीसरा आस्पेक्ट है, उससे हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं। और फिर चौथा आस्पेक्ट है, उससे हम कोगुलेशन या फ्लूकेशन कहते हैं या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ये चार चीज़ें हमें एक्चुअली स्टडी करनी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में। इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी का पहला हिस्सा ले रहा हूँ, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ ए कोलाइड। तो इसमें मैं आपको सिंपली ये बता दूं कि जब हम कोई कोलाइड प्रिपेयर करते हैं, व्हेन एवर वी प्रिपेयर ए कोलाइड, तो जाहिर सी बात है कोलाइड में क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स इन ए डिस्पर्शन मीडियम। इन डिस्पर्शन मीडियम जो होता है, इस डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स सेकेटर्ड होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं। ये हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है। यानी डिस्पर्शन मीडियम के डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। ये इस डिस्पर्शन मीडियम में ये पार्टिकल्स सेकेटर्ड होते हैं इन डिफरेंट अमाउंट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो अब मसला क्या है कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं, इन पार्टिकल्स की सरफेस पे एक पर्टिकुलर चार्ज होती है। वो चार्ज कैसे आती है वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। इन पे चार्ज होती है, मिसाल तौर पर कई जगहों पे हमने देखा है ये चार्ज जो होती है नेगेटिव चार्ज होती है। इस पे कोलाइडल इस जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है, इन पे नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से अब देख लीजिए नेगेटिव चार्ज है। तो कहीं पे ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, कहीं कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होती है और कहीं कहीं पे, क्योंकि चार्ज तो दो ही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसलिए इन डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स पे या तो नेगेटिव चार्ज होगी या पॉजिटिव चार्ज होगी। मैंने बताया ना ये चार्ज कहाँ से आती है, ये हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। फिलहाल आप इस वक्त इतना याद रखेंगे कि इन पार्टिकल्स पे चार्ज होती है, कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कॉपर सॉल लेंगे, सिल्वर सॉल लेंगे, गोल्ड सॉल लेंगे, तो इन पे नेगेटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज। तो आप खुद देख लीजिए क्या होगा, इस पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो जाहिर सी बात है जब ये पार्टिकल नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। तो रिपल्शन की वजह से ये पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे से दूर रहते हैं। इसी तरह से अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज होती तो फिर भी ये एक दूसरे से रिपल्शन करते, दूर हो जाते। जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आयरन हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, वो ये कोलाइड्स हैं जिन पे कोलाइडल पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इस चार्ज की वजह से, लाइक चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, ये क्या करते हैं, दे रिपेल ईच अदर। अब आप खुद समझ गए होंगे, जब ये रिपेल करते हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स जो है, इट डजंट अलाउ देम टू कम क्लोज। रिपल्सिव फोर्स जो है डजंट अलाउ कोलाइडल पार्टिकल्स टू एग्रीगेट टुगेदर, टू कम टुगेदर। अगर ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाते, क्लोज आ जाते, तो फिर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता, उस वजह से इनका साइज बढ़ जाता। जो ही साइज इनका बढ़ जाता तो ये मास में भी बढ़ जाते। तो जाहिर सी बात है फिर ये सोल्यूशन में नहीं रह पाते, ये सारे पार्टिकल्स जमा हो जाते एट द बॉटम। तो हम कहते कि ये कोलाइड जो है ये अनस्टेबल है। तो इसलिए ये जो कोलाइडल स्टेट में रहता है, ये पार्टिकल जो हमेशा डिस्पर्स्ड रहते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो यही बात मैं कह रहा था आप लोगों से कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम स्टडी कर रहे हैं कि ये जो चार्ज प्रेजेंट होती है ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स, ये कहाँ से आती है, इट विल बी डिस्कस्ड टुमारो। तो ये जो चार्ज है, चूंकि कोलाइडल पार्टिकल्स पे एक जैसी चार्ज होती है, बिकॉज ऑफ लाइक
direct charge, these colloidal particles, they repel from each other, and this repulsive force doesn't allow them to come close together. With the result, when they doesn't come close, they remain suspended. Rather they remain dispersed in the dispersion medium, and when they remain dispersed, that means they remain stable. Colloidal salts are stable. So it is because of this charge. This charge can be positive और इट कैन बी नेगेटिव. जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये जो मेटल सॉल्व्स होते हैं, मेटल सॉल्व मैंने बताया सपोज कॉपर मेटल है, सिल्वर मेटल है, गोल्ड मेटल है, जो इनके सॉल्व्स होते हैं इन पे नेगेटिव चार्ज होती है. दे हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देम. इसी तरह से मेटल सल्फाइड्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर सल्फाइड AS2S3 और सीनियर सल्फाइड है या कैडमियम सल्फाइड है, इन पे भी यानी सल्फाइड्स जो होते हैं इन पे भी नेगेटिव चार्ज होती है. इसी तरह से जो आपके कोलाइड्स हैं, स्टार्च है, गम है, जेलेटिन है या चारकोल का है, सिलिकिक एसिड है, ये जो हैं ऐसे सॉल्व्स जो हैं इन पे भी नेगेटिव चार्ज होती है. इसी तरह से एसिडिक डाइज जो होते हैं, एसिडिक डाइज जिसमें कांगो डाई आता है, कांगो डाई या इयोसिन सॉल्व्स, ये सारे सॉल्व्स जो हैं इन सबों पे नेगेटिव चार्ज होती है. इसी तरह से बहुत सारे सॉल्व्स, बहुत सारे कोलाइड्स ऐसे भी हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होती है. जैसे मैंने अभी बताया मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स जिसमें आयरन हाइड्रोक्साइड है FeOH होल थ्राइस, या अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड है AlOH होल थ्राइस, या क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है CrOH होल थ्राइस, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इन सबों पे पॉजिटिव चार्ज होती है. इसी तरह से हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स, इन हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स पे भी पॉजिटिव चार्ज होती है. मिसाल तौर पर Al2O3X टाइम्स वाटर, इस पे पॉजिटिव चार्ज होती है. इसी तरह से Fe2O3X टाइम्स वाटर, इस पे पॉजिटिव चार्ज होती है. या क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3X टाइम्स वाटर, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होती है. इसी तरह से टाइटेनियम ऑक्साइड जो है, टाइटेनियम ऑक्साइड, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होती है. इसी तरह से आपका हीमोग्लोबिन जो है इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होती है. इसी तरह से बेसिक डाइज पे नेगेटिव चार्ज होती है, और जो बेसिक डाइज होते हैं इसमें मिथाइलिन बिल्यू आता है, मिथाइलिन बिल्यू जो है, या इसी तरह से प्रूसन बिल्यू, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होती है. तो इस तरह से हमारे पास जो डिफरेंट कोलाइडल सॉल्व्स हैं, आधे वो हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, आधे वो हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होती है. तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कौन कौन से कोलाइडल सॉल्व्स वो हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है. जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि नेगेटिवली चार्ज सॉल्व्स कौन से होते हैं और कौन से वो हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होती है. कभी कभी ये बात एग्ज़ाम में पूछी जाती है, खासकर जो नीट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें अक्सर कभी कभी ये क्वेश्चन रिपीट होता है. तो फिलहाल आप ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात ये है कि जो कोलाइडल सॉल्व होता है इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं इन पे चार्ज, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स पे चार्ज होती है. ज़ाहिर सी बात है उसकी अपोजिट चार्ज डिस्पर्शन मीडियम पे होगी. तो फिलहाल हम डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स की बात करते हैं. इन पे चार्ज होती है इधर नेगेटिव और पॉजिटिव. ये चार्ज जो होती है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिपल्शन. तो उस रिपल्शन की वजह से दीज कोलाइडल पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड, दे रिमेन dispersed in the solution in the dispersion medium, and this charge doesn't allow the particles to come closer and settle at the bottom. In this way the colloidal solutions are stable. तो stability of colloidal solids जो है that's explained on the basis of charge present on the colloidal particles. अब दूसरी बात यह है कि
इन कोलाइडल पार्टिकल्स पे ये चार्ज कहाँ से आती है और कैसे आती है, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। और फिर जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेटेड हैं, वो भी इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।